गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बेक टू ऑनलाइन टीचिंग क्लास। आज आपणे गुजराती विषयનું ચોથું એકમ એટલે કે ચોથું પાઠ સિંહનું મૃત્યુ જે છે તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું। સિંહનું મૃત્યુ પાઠના લેખક છે ધ્રુવ ભટ્ટ। ધ્રુવ ભટ્ટનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના નિંગાણમાં થયો હતો। તેમનું વતન મોરબી છે। તેમણે બીકોમ સુધીનું શિક્ષણ મેળવ્યું છે। તેમણે પ્રકૃતિ સાથેના મનુષ્યના આત્મીય સંબંધનું ગુજરાતી નવલકથામાં ઉત્તમ આલેખન કર્યું છે। સમુદ્રાંતિકે, અગ્નિકન્યા, તત્વમસી, અત્રાપી, અકુપાર, કર્ણલોક, તિમિરપંથી તેમની નવલકથાઓ છે। શૃણવંતુ, ગાય તેના ગીત તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। ખોવાયેલું નગર તેમનો કિશોર કથાનો સંગ્રહ છે। તેઓ ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના પુરસ્કાર તથા સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હી પુરસ્કારથી સન્માનિત થયેલા છે। એટલે કે ધ્રુવ ભટ્ટે સુંદર મજાના એકમો અને નવલકથાઓ લખી છે। તેમનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના નિંગાણ ગામમાં થયો છે અને હાલમાં તેઓ મોરબીમાં રહે છે। તેઓએ બીકોમ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે અને તેમને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર અને દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીથી એવોર્ડથી તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે। ધ્રુવ ભટ્ટની અકુપાર નવલકથામાંથી આ એકમ એટલે કે આ ચેપ્ટરનો પ્રકાર છે નવલકથા। અકુપાર નવલકથામાંથી આ અંશ લેવામાં આવ્યો છે। એટલે કે અકુપાર પુસ્તક તેમણે જે લખ્યું છે તેમાંથી આ ચેપ્ટર લેવામાં આવેલું છે। અકસ્માતે થતું એક સિંહનું મૃત્યુ ગીર પ્રદેશના માણસોને દુઃખથી કેવા ગમગીન બનાવી દે છે તેનું અહીં આલેખન થયું છે। ગામના પાદરમાં આવેલા પુલ પર રાત્રે બંને બાજુથી આવતી ગાડીઓની લાઇટમાં અંજવાઈ જઈ અંધકાર બાજુ કૂદી પડતા સિંહનું મૃત્યુ થાય છે। મૃત્યુ પામેલા સિંહનો માણસની જેમ અંતિમ સંસ્કાર પણ થાય છે। સિંહના અંતિમ સંસ્કાર નિમિત્તે માત્ર સાસણ જ નહીં, આજુબાજુના બીજા 10 ગામ પણ બંધ પાડીને સિંહના મૃત્યુનો શોક પાડે છે। અહીં મનુષ્ય અને પ્રાણીની आत्मीयताનું आलेखन अनेक रीते विशिष्ट है। इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये सीखना है कि एक लेखक जो है इन्होंने लिखा है कि एक्सीडेंटली एक सिंह जो है उन गिर प्रदेश में से उसका रोड पे जाते जाते दोनों साइड से व्हीकल की लाइट के कारण वो रास्ते में पुल पर से कूद जाता है, नीचे गिर जाता है और उसका मृत्यु डेथ हो जाती है। उसकी डेथ की वजह से आसपास के गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे एक मनुष्य का मृत्यु डेथ हो जाती है तो जैसे अंतिम संस्कार क्रिया विधि होती है वैसे ही उसकी अंतिम क्रिया करते हैं और उसका शोक पाड़ते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। ये हमें इस चैप्टर के माध्यम से सीखना है। સાસણ પહોંચ્યો ત્યાં બજાર સુમસામ જોયું। રસ્તા પર આંટા મારતા ટુરિસ્ટ કે અમસ્તા ભેગા થયેલા માણસો સિવાય કોઈ નહોતું। પોતપોતાની જીપ્સી ઘરે મૂકી રાખીને બજારમાં ભેગા થયેલા ડ્રાઈવરો એક ઓટલે ટોળે વળ્યા હતા। મારી નજર અહેમદ પર પડી। મેં ત્યાં જઈને પૂછ્યું, શું છે અહેમદ, આજે બધું કેમ બંધ રાખ્યું છે? અહેમદ ઊભો થઈને ટોળામાંથી બહાર આવ્યો અને મારી સાથે હાથ મેળવીને મારી ખબર પૂછતો હોય તેમ બોલ્યો, केम छे, खैरियत छे ने? अब यहाँ पे सासण मतलब जूनागढ़ जो स्टेट है वहाँ का एक गांव है जहाँ पे बहुत सारे सिंह को रखा जाता है। वहाँ सिंह का ही एरिया उसे बोलते हैं। वहाँ गांव के बाहर सब ड्राइवर्स, बहुत सारे ड्राइवर्स एक चौराहे पे बैठे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहाँ अहमद ने आके पूछा कि भाई आज यहाँ पे बहुत सारे क्यों इकट्ठे हुए, कुछ बात हुई है क्या? तब अहमद वो जो ड्राइवर था उसने उसकी तबीयत की पूछते हुए बोला कि केम छे, बधु खैरियत तो छे ने, मतलब सब कुछ ठीक तो है ना? हूँ तो मजामां छूं, पण अहीं तमे बधा केम नवरा फरो छो? दुकानों पण बंद छे, कहीं थयुं छे के शुं? परमदी रात्ये, यहाँ पे रात्ये मतलब रात को, परमदी रात्ये आए पुल माथेथी साहवजे पड़तू मेल्यू। साहवज मीन्स सिंह, पड़तू मेल्यू मतलब गिर गया। आज इने मयत करी ते गाम बंद छे। मयत मतलब उसकी स्मशान यात्रा जो है उसके लिए आज गांव पूरा बंद रखा है। बपोर केड़े सभा सौ थवानी से, बपोर केड़े मतलब दोपहर के टाइम में, सभा मतलब प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया हुआ है। घड़ीभर मने लाग्યું કે અહેમદ મારી મજાક કરે છે। મેં કહ્યું, ગોવિંદભાઈ કહેતા તો હતા પણ આ પુલ પરથી નીચે કેવી રીતે થયું?
अब उसको लगा कि अहमद मेरे साथ थोड़ी मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने देखा कि શાહવજ मतलब સિંહ जो है वो कैसे गिर गया, वो उससे पूछ रहा है। અહેમદે બીડી સળગાવી અને મને એક વૃક્ષના ઓટલા તરફ દોરતા કહ્યું, અજાણતામાં ઈ કાંઈ જોઈ જાણીને તો નહીં તો ન પડે ને। मतलब अहमद को वो आंसर देता है कि वो जानबूझ के तो नहीं गिरा होगा ना, कुछ तो हुआ होगा जिससे कारण वो सिंह जो है वो गिर गया। કહીને અહેમદ વાત માંડી। રાત્રે 10 સાડા 10 થયા હશે અને મેંદરણા તરફથી આવતા કોઈ વાહનના ડ્રાઈવરે વળાંક લેતા જ જોયું હશે કે પુલ પર કોઈ મોટું પ્રાણી ચાલ્યું જાય છે। આગળ ચાલ્યા જતા પ્રાણીએ પોતાની નિરાંતવી ચાલ અને પાછળ કોણ શું કરે છે કે તે તરફથી બેદરકારીથી તરત જ પોતાની જાત છતી કરી લીધી। ડ્રાઈવરે પુલ પર જ ગાડી થોભાવીને સાસણમાં રહેતા મિત્રને મોબાइल કર્યો। आया पुल माथे सावज हालियो जाए छे। अब यहाँ पे एक जो व्हीकल का ड्राइवर था वो वहाँ से टर्न ले रहा था और उसने देखा कि पुल ब्रिज के ऊपर से कोई बड़ा सा जानवर निकल रहा है, इसलिए उसने लाइट की और वहाँ पे गाड़ी स्टॉप करके अपने गांव के फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे तो मोबाइल करके बोल रहा है कि आया पुल पर माथे साहवज हालियो जाए से, मतलब ब्रिज के ऊपर एक सिंह चला जा रहा है। मित्र पोताना जन्म पछी क्यारे न बनेली वात बनी होय एवं मानवा तैयार न थयो। तेणे कह्युं ए भले दोयडे बांधीने लेता आओ। अब उसको मस्ती सूझ रही थी, उसको लगा कि पुल पर से कोई लायन जो है सिंह ऐसे ही थोड़ी घूमने निकलेगा, इसलिए उसने मस्ती की कि उसने बोला कि भाई यहाँ से पुल पर से एक ब्रिज पर से ये जो जा रहा है लायन, तो वो बोल रहा है कि अच्छा तो उसको रस्सी से डोरी से बांध के मेरे घर पे लेके आओ। तारो बाप आ हागड़ हालियो जाए से। अब वो गामठी भाषा में मजाक करते हुए बोल रहा है कि वो तेरा बाप जो है यहाँ से निकल जा रहा है। सामे एणे जवाब आप्यो। अब मस्ती मजाक में ऐसा आंसर दे रहा है। ड्राइवर नो चिंता भर्यो स्वर सांभळ्यो, ए होय, मतलब वो चिंतातुर होके ए होय ऐसे फ़ोन में भी उसको बोल रहा है कि वो जा रहा है। मित्र साथे बात करता करता ड्राइवरनी नजर पुल सामे छेड़ेना वळांकमांथी आवता वाहननी हेडलाइटना शेरडा पर गई कि तेणे फोन बाजू पर मूकी पोताना वाहननी हेडलाइट चालू बंद करीने सामेथी आवता वाहन ने चेतवानुं शुरू कर्युं। अब सामने से भी एक लाइट आ रही थी, वो उसे ये ड्राइवर जो है उसे समझाना चाहता था कि यहाँ पुल पर से कोई जा रहा है तो आप अपनी गाड़ी थोड़ी स्पीड जो है कम करो या फिर स्टॉप करो, ऐसे लाइट की चालू बंद क्रिया करके समझाना चाहता था। परिणामे सामेथी वळांकमां आवतुं वाहन जरा धीमું तो थयुं पण तेना ड्राइवरने हजी पुल पर शुं छे ते देखातुं नहोतुं। सामेनुं वाहन वळांकमांथी अचानक निकळ्युं अने छेक पुल सुधी आवी गयुं। अब सामने से टर्न में से जो वो व्हीकल आ रहा था वो ड्राइवर ने भी पुल पर ब्रिज के ऊपर से कुछ जा रहा है वो थोड़ा देखा तो सही, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि क्या जा रहा है, इसलिए थोड़ा उसने गाड़ी नज़दीक ले ली। गामना पादરમાં गणाय नहीं तेवा पुल पर सिंह चाल्यो आवतो होवाथी अपेक्षा तो ठीक धारणा पण कोने होय। अब मतलब वो सोच रहे थे कि यहाँ से थोड़ी लायन जा सकता है। अचरज भय के हवे શું થશે તેની કલ્પના કેટલી મૂંઝવણથી ઘેરાયેલા ડ્રાઈવરે પોતાના વાહનની ધીમી છતાંય ગતિ રોકવા જોરદાર બ્રેક मारी चीक आवाज़ करीने वाहन पुल पर रोकाई गयो। अब वो जो सामने से व्हीकल आ रहा था उसने देखा कि कोई जा रहा है, लेकिन कुछ समझ में आया, उससे पहले वो थोड़ा आगे आ गया था। अब ये लायन को देख के उसने गाड़ी ज़ोर से ब्रेक किया और ची जैसे ज़ोर से आवाज़ आई। अहमदे कह્યું સાવજ सीधो हाल्यो गयो होत तो कांई थवानुं नहोतुं, पण सावज कोने कैसे। अब मतलब सिंह जो था वो अगर सीधा चला गया होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसने भी सोचे समझे क्या किया। देखो माणाना घोंघाटने अजवाड़ामां ईनी मोजमां ने ईने तो ठाठथी हालवानी मोज। गाड़ियों माणा भाड़े न्या आगो तरीने हाले। अब ये जो एनिमल्स होते हैं उनको थोड़ी ये बुद्धि भगवान ने दी होती है कि भाई सामने से ये जो व्हीकल आ रहा है तो मुझे किस तरह जाना चाहिए। परिणामे सामेथी वळांकमां आवतुं वाहन जरा धीमुं तो थयुं पण तेना ड्राइवरे हजी पुल पर शुं छे ते देखायुं नहोतुं। सामेनुं वाहन वळांकमांथी अचानक निकळ्युं अने छेक पुल सुधी आवी गयुं। सामने से जो व्हीकल आ रहा था वो उस दिन नजीक आ गया।
ગામના પાદરમાં ગણાય તેવા પુલ પર સિંહ ચાલ્યો આવતો હોવાની અપેક્ષા તો ઠીક, ધારણા પણ કોને હોય? અચરજ કે ભય? અહેમદની વાત સાચી હતી. અરણ્યની કેડીઓ પર બંને તરફ તો શું ચારે તરફ વાહનો હોય તો પણ ગીરનો વનરાજ કંઈ પણ પરવા વગર પોતાની મસ્તીમાં વાહનો વચ્ચેથી બેઝીઝક પાર નીકળી જતો મેં જોયો છે. અહીં પુલ પર સિમેન્ટ ડામરના રસ્તે તેને નવું લાગ્યું. બેઉ તરફથી આંખો આંજી નાખતા પ્રકાશના શેરડા અને અવાજથી કંટાળીને પ્રકાશહીન વિસ્તારમાં ખસી જવાનું નક્કી કર્યું હોય તેમ શાર્દુલ પુલની પાળી કૂદીને पहली तरफ गयो. अब यहाँ पे लायन ने क्या किया, दोनों साइड से बहुत ही लाइट पर दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने वहाँ से निकल जाने का रास्ता सोचा और वो कहाँ कूद रहा है वो उसने देखा नहीं. ઘડી વાડીઓના વંડા કૂદાવ્યા છે, જંગલ ખાતાની રક્ષણવાળ પર સહેલાઈથી વડોટી છે. એ બધાની સરખામણીએ આ 4 ફૂટની દિવાલ તો રમત જ કહેવાય ને. આ કૂદ્યા કે પહેલી तरफना अंधारा खेतर में. अब ये जो सिंह जो है उसने सोचा कि मैंने तो बहुत छलांग मार के जंगलों को भी कूद के पार कर गया हूँ. अब ये जो 4 फुट की दीवार जो है इससे कूदने से मुझे कुछ नहीं होगा. लेकिन वो इतनी जल्दी कूद गया कि नीचे कहाँ गिर रहा था वो उसने देखा नहीं. अहमदे पूरी थयेली बीड़ी पत्थर पर घसीने ठारी, પછી એક તરફ ફેંકીને વાતનું સમાપન કરતો હોય તેમ બોલ્યો, દી હોત તો સાહવજ વંડીની ઓલીકોર તળિયું નથી ઈ તો ભાડી લેત. દી હોત તો એને સહંધી સહમજ પડે. આ તો રાતે 11 વાગ્યા હતા, પાસી 2 કોરથી આંખ્યું અંજાઈ गई. એમાં એની गणतरी जरा खोटी पड़ी गई. मतलब अगर दिन होता तो ये जो सिंह जो है वो कुछ देख के अपना काम सोच के कर पाता, लेकिन रात के अंधेरे में बिना सोचे उसने ये छलांग लगा दी. પોતાના સામ્રાજ્યમાં ફરતા રાજવીની અદાથી અભય મસ્તાન રજડ પાડતો સિંહ માટે સહજ છે. તેની આ અદા એ જ તો ભૂતકાળમાં પોતાની પેઢીઓની શિકાર સામે સહજ ધરી છે. એ જ શાહી મિજાજથી રહેવાનો ચાલવાનો સ્વભાવ ક્યારેક એને અવાવરું કૂવામાં ઘરકાવ કરી દે છે. અહીં તો નીચે हिरण હતી. હવે हिरण નદીનો પટ હતો, मतलब हिरण नदी का नीचे का तट था जहाँ पे उसने छलांग लगाई थी. हिरणનો પથરાળ પટ પણ પોતાનો કાળમીંડ સ્વભાવ છોડી દે તેમ ક્યાં હતો? એમ હોત તો પણ ગમે તેટલું ચાહીને છેક ઉપરથી આવી પડેલા વનરાજને બચાવે તો કેમ કરીને? થવાનું હતું તે જ થયું. પડતા વેત જ સિંહનું માથું फाटी गયું. अब नदी जो है वो भी अपना स्वभाव बदल नहीं सकती. या तो ऊपर से कोई छलांग लगा रहा है तो उसको बचाने की कुछ भी ट्राई नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो सिंह जो है उसने पुल पर से छलांग लगाया, तब नीचे हिरण नदी का किनारा था. ડ્રાઈવરોએ હતા તે સાધનોથી નીચે જોવા નિષ્ફળ પ્રયત્નો કર્યા. પછી બૂમો પાડતા જઈને ઊંઘતા ગામને જગાડ્યું. જે કોઈએ આ બનાવ વિશે જાણ્યું હોય તેને અરેરાટી વ્યક્ત કરી. दोनों ड्राइवर नीचे उतर के उनके पास गाड़ी में जो भी सामान था उसकी लाइट से देखने का प्रयत्न किया कि भाई से ये सिंह कहाँ गिर गया, उसका क्या हुआ है. તે રાત્રે નદીના પટમાં વન ખાતાની સર્ચ લાઇટો, નદીમાં ઉતરેલી જીપ ગાડીઓનો પ્રકાશ, કિનારે ઊભેલી એમ્બ્યુલન્સ, સ્ટ્રેચર લઈને નદીમાં ગયેલા ફોરેસ્ટરો અને બીટ ગાર્ડની ટોર્ચનો પ્રકાશ. અહેમદે આ બધું એક વાક્યમાં વર્ણવી દીધું. ઘડીક તો અડધી રાતે દી ઉગાડી દીધો. मतलब अब जो ये जो सिंह था वो गिर गया, उसके बाद क्या क्या हुआ तो एम्बुलेंस, फॉरेस्ट खाता के अधिकारी ये सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए. लाइट, बहुत सारी लाइटें जला दी और ये सिंह जो है कहाँ गिर गया ये सर्च करने लगे. જૂનાગઢથી ડૉક્ટર અને અધિકારીઓએ આવીને પોસ્ટમોર્ટમ અને બીજી વિધિઓ પૂરી કરી. પછી સિંહના નશ્વર દેહને અવલ મંજિલે પહોંચાડ્યો. જગતમાં નહીં તો દેશમાં તો આવો આ પહેલો બનાવ હશે કે જ્યાં જેને આપણે એક પ્રાણી ગણીએ છીએ તેના અંતિમ સંસ્કાર નિમિત્તે સાસણ જેવું વિવિધ વરણની વસ્તી ધરાવતું આખું ગામ બંધ રહે. માત્ર સાસણ જ નહીં, હરિપુરા, હિરણવેલ, ચિત્રાવડ, ચિત્રોડ, બોરવાવ, ભોજદે, ન જાણે
ક્યાંના લોકોએ પોતાનો શોક આ રીતે દર્શાવ્યો। मतलब आसपास के लगभग कुछ न कुछ 10 गांव के लोगों ने ये जो सिंह जो नीचे गिर गया था और अधिकारी और डॉक्टरों ने आके उसको डेथ डिक्लेयर किया, तब बहुत दुख के कारण सब आसपास के गांव वालों ने उसका शोक व्यक्त किया था। बंद करके पूरा गांव उन्होंने बंद रखा था। यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द समझूती समानार्थी शब्द दिए हैं। साहवज मतलब सिंह, मयत एटले मरण पाछळनी विधि, अरण्य एटले जंगल, अभय एटले भयथी मुक्त, भय वगरनु, अवावरू एटले बहु वखतथी वपराया वगरनु, कुछ बहुत लंबे टाइम से जो हम चीज़ या फिर कोई मकान या फिर हवेली होती है जिसका हम यूज़ नहीं करते उसको अवावरू कहते हैं। फॉरेस्टर एटले जंगल खातानो अधिकारी, बेझिझक एटले अचकाया विना, शार्दुल एटले सिंह, अहींया सावज, सिंह अने शार्दुल आ बधा समानार्थी शब्दों छे। अवल मंजिल एटले दफन क्रिया, हिरण एटले गीरनी एक नदी। विरुद्धार्थी शब्दों छे, बेदरकारी एटले तकेदारी, परवा एटले बेपरवा, शोक एटले आनंद। अहींया तेना विरुद्धार्थी शब्दना जवाबो आपेला छे। तळपदा शब्दों, संधि एटले बधी सगड़ी, तमाम आ संघी शब्दना तळपदा शब्दनो अर्थ छे। रात्य एटले रात अने रात्रि, आय एटले अहीं, मेल्यु एटले मूक्यु छोड़ दिया, हाल्यो एटले चाल्यो जाय छे, આવ્ય एटले आव, ईने एटले एने, ओलिकोर एटले पहली बाजू उस साइड, सहोत एटले पण, माणा एटले माणसो, वरण एटले वर्ण जाति। अहींया रूढ़िप्रयोग छे, जात छती थवी थई जवी, जेवुं होय तेवुं देखाई जवुं। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 पेपरनी अंदर જ્યારે 2 અને 4 गुणवाળા प्रश्नोत्तर लखता पहला आ प्रमाणे प्रस्तावना लखवी। इट मीन्स के 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जब पूछे जाते हैं तब वो क्वेश्चन आंसर में आपको सबसे पहले यहाँ पे लास्ट जो मैंने बॉक्स दिया है इस तरह आपको लिखना है। पहले लेफ्ट साइड में कृति यानी कि चैप्टर का नाम, फिर उसका नीचे प्रकार, फिर राइट साइड में कर्ता यानी कि जिसने ये चैप्टर लिखा है, कवि या लेखक का नाम और कौन से चैप्टर में से लिखा गया है, और ये जो ब्रीफ दिया है इतना लिख कर ही आपको आंसर स्टार्ट करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।